آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ جسم اور ذہن کو ملانے کا نام رقص ہے، ایسا کہتے ہیں۔ رقص درویش تو ہم سب نے ہی دیکھا ہے، آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا۔ تصویر ذرا دھیان سے دیکھیے گا، بازو آسمان کی سیدھ میں اور پاؤں زمین کے گردشی ردم سے جڑے ہوئے۔ سنا ہے رقص ہمارے اندر کے سہمے ہوئے بچے کی بیڑیاں کھول دیتا ہے اور دماغ خود اعتمادی کی لہروں پہ ہلکورے لینے لگتا ہے۔ یہ ماحول میں نے ایک ایسی شخصیت کے لیے بننے کی کوشش کی ہے جس کی زندگی ہی کم از کم 4 دہائیوں سے رقص میں ہے۔ ان کا سفر دیگر بچوں کی طرح بیلے اور کنٹمپریری میں دلچسپی سے شروع ہوا۔ لگ بھگ 14 برس کی عمر میں ناہید صدیقی جیسا گرو مل گیا، اور ناہید مل گئی تو کتھک بھی مل گیا۔ صرف سیکھا ہی نہیں، رقص کو پڑھا بھی۔ کہاں کہاں ان کے پاؤں نہیں گئے۔ گولڈ سمتھ کالج، یونیورسٹی آف لنڈن، مڈل سیکس یونیورسٹی لنڈن، کتھک کیندر دلی، جین یونیورسٹی بنگلورو، ماسٹر ان ڈانس ایجوکیشن، ڈپلومہ ان کوریوگرافی۔ یہ مختصر سی فہرست ہے، بہت کچھ انہوں نے کیا۔ نئے بچوں کو سکھانے کے لیے اپنا ڈانس اسٹوڈیو ہے، جو نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے آن لائن کورسز ہیں۔ ان کورسز کے سبب ان کے شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان دنوں حبیب یونیورسٹی کے آرٹ آف کتھک شعبے میں پروفیسر آف ڈانس پریکٹس بھی ہیں۔ انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر سے بھی ناتا ہے، اور نام ہے ان کا نگہت چودھری۔ تھینک یو سو مچ۔ Thank you for inviting me. I'm so honored to be here. کتھا سے کتھک تو عام زبان میں اس کی مختصر آپ ہسٹری کیا بتائیں گی ہمارے لیے، جن کو کہ الف بے تے کا بیسک نہیں معلوم اس کا؟ So basically دیکھیں، اگر میں کتھک کی تاریخ کو لے کے جاؤں تو کتھک ناٹیہ شاسترا از literally the Bible of performing arts. ٹھیک ہے، it's the book of performing arts جس میں تھیٹر، میوزک، ڈانس which was 2 AD. ٹھیک ہے، تو اب بھرت منی نے لکھی تھی، there's a mythology behind it, there's a story behind it. تو وہاں سے جو رقص کا جو سلسلہ سٹارٹ ہوا، so we're looking at dance as dance. We're not looking as یہ تھا یا یہ وہ تھا. The oldest form is Bharatnatyam. جی، We have to understand کہ اس سے پہلے سارے جتنے ڈانس فارمز فوک ڈانسز تھے. They started evolving into classical forms. تو کتھک کی اگر تاریخ دیکھا جائے تو it started off as a temple dance with mythology of Mahabharat, Ramayan, shlokas, Vedas, to educate the people. لوگوں کو تعلیم دینی تھی کیونکہ لوگ پڑھے لکھے تو تھے نہیں. سو کیا ہوتا تھا کہ برامنز آتے تھے مندروں میں، اور پریسنکس لائک جیسے کورٹ یارڈ ہوتا مندر کا، تو وہ آ کے اپنے اپنی دیویوں کو جو پوجا کرتے تھے یا جو بھی اپنے چڑھاوے لے کے آتے تھے، جیسے ہم مزار پہ جاتے ہیں ہم اپنی چادر چڑھاتے اس طرح. تو دا برامنز جو تھے وہ کتھکاس تھے. سو کتھک کا نام ابھی تک نہیں آیا، کتھکار یا کتھکاس تھے، کہانی بتانے والے. تو وہ کتھا سے کتھک، سے وہاں کتھکاس یا کتھکار. تو وہ سارے ویدا شلوکاز وہ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے تھے آڈینس میں. اور کیونکہ وہ صرف ٹیکسٹ تک تھے، دیکھ رہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات، اگر وہ صرف ٹیکسٹ تک بات تھی تو ساری رات میں کیوں بیٹھوں؟ نہیں، وہ مزہ نہیں آئے گا، بور ہو جائیں گے. انہوں نے میوزک، پھر انہوں نے ڈانس کو انوالو کرنا شروع کیا، کیونکہ پوری رات کا جو ایک بیٹھنا ہوتا تھا، پوری رات لوگ بیٹھتے تھے. مگر صرف ٹیکسٹ، اگر میں ایک شلوکا پڑھوں یا کوئی ایسی چیز پڑھوں، اٹس ناٹ انٹرسٹنگ. لوگ سو جائیں گے، ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی تو سو ہی جائیں گے. انہوں نے اسٹوری، ناٹیہ، ڈرامہ، مطلب کہ انٹرسٹنگ اور بڑی ایک ڈرامیٹک ایلیمنٹ آف اسٹوری ٹیلنگ ڈیولپڈ. اینڈ دس از ہاؤ آل دا کلاسیکل ڈانس فارم اسٹارٹیڈ ڈیولپنگ. وہاں سے نکلا تو آپ دیکھیں کہ یہ مسلم انویژن
देन ऑल द कथकास जितने थे वो डर के मारे गांव में चले गए, ठीक है। फिर राधा कृष्णा who are the eternal love legends, like we have Heer Ranjha, like we have so many, इस तरह वो कृष्णा कथक का लॉर्ड है, कथक का बादशाह है, लॉर्ड ऑफ द डांस कभी कहा जाता है, मतलब कि शिवा जो है ना इज द कॉस्मोस गॉड ऑफ डांस, राइट, बट कृष्णा जो है ना वो कथक का लॉर्ड है, कथक का बादशाह है, मतलब उसको मानते हैं वो है, और उसके इर्द गिर्द सारे कथक स्टोरी टेलिंग घूमती है। तो वो विलेजेस में चले गए, वो एक फोक डांस बन गए। सो टेम्पल डांस, फोक डांस, रासलीला होना शुरू हुआ, और फिर राजस्थान में बादशाहों ने उनको वो मतलब पनाह दी और सब कुछ बिकॉज ऑफ द इन्वेजन, एंड देन फाइनली इट्स फाइनल लुक जो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कथक वाज थ्रू द मुगल्स। अच्छा, मुगल दरबार। तो जैसे मुगल्स आए तो आप देखेंगे जो गांव में थे जितने गुरु लोग थे वो उनको वापस बुलाया जाता था दरबारों में, ठीक है। तो समझ ले कि अगर ये सॉर्ड है, ये शील्ड है, ये सॉर्ड है, तो वो हाथ फिर बन गया। सही। सो क्योंकि बादशाह इंटरेस्टेड नहीं था माइथोलॉजी में, ठीक है। वो देखो ना, यू लुक एट आर्किटेक्चर, यू लुक एट हाउ द मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू डिज़ाइन, तो उनको अवेयरनेस थी गुरु लोगों को, उन्होंने कहा हम ना ये चीज़ें गते रुखसार, दुपट्टा कैसे खींचते, ये मुग़ल की बेगमें कैसे होती हैं, ग्रेस क्या होता, आन बान क्या होता, तो उसमें फिर वो रेpertoire बनना शुरू हो गया, एक वोकैबुलरी बनना शुरू हो गई, जैसे आमद, ठाट, उठान। फिर देखे ना 13वीं सदी 14वीं सदी में हज़रत अमीर खुसरो तबला, सितार, चत्रवीणा से तबला बना, आपके चत्रवीणा से सितार बना, मृदंगम से तबला बना, टूटा फिर। सो कॉन्ट्रीब्यूट, सो नॉर्दर्न इंडियन म्यूजिक चेंज्ड, उसकी जो आइडियोलॉजी, उसकी जो राग, उसकी जो साउंड, वो चेंज था। सो फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस है इन एप्लीकेशन ऑफ सुर एंड एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे जब मुगल का ज़माना आया तो समझ लो कि कथक अपने पीक पे चला गया, ठीक है। तो वो रिफाइन हो गया, वो एक क्लासिकल डांस बन गया, वो एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म बना। वो कहते हैं ना फाइन ट्यून करते करते करते, उसकी वजह भी ये है क्योंकि इन द कोर्ट्स यू हैड ईरानियन डांसर्स, सेंट्रल एशियन डांसर्स भी थे और इराक, ईरान में जितने ये सारे इन्फ्लुएंसेस पर एक तरह से कंबाइन भी हुए, कोर्ट में हो रही है, ठीक है। एंड स्टैंडिंग पोजीशन अगर आप सारे साउथ एशियन डांसेस देखें, साउथ इंडियन डांसेस देखें, द प्ले, द बेंड इन द बॉडी, बॉडी माइथोलॉजी में बेंड होता, ठीक है। कथक स्ट्रेट है, इरेक्ट है। दिस केम फ्रॉम द ईरानियन डांसेस, सेंट्रल एशियन डांसेस। द वर्लिंग केम फ्रॉम मौलाना रूम। जी। अब आप देखें 13वीं 14वीं सदी में अच्छा, और फिर मौलाना रूम के इन्फ्लुएंस आया, किसी और फॉर्म में मुझे बताएं कहाँ। और तो एक लिहाज से, सॉरी बात काट रहा हूँ, अगर आप कथक की तारीख को ट्रेस करें तो आपको इस पूरे खित्ते की तारीख भी एक तरह से समझ में आ जाती है ना, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे आप समझा रहे हैं बड़ी खूबसूरत अंदाज में, कि ये मामला सिलसिला शुरू होता है फोक डांसेस से, वहां से जाता है टेम्पल में, वहां से फिर बिखर के टेम्पल से फोक से फिर दोबारा gets reconstructed, like all of human history, like all of human history. तो एक आर्ट फॉर्म भी मेरे ख्याल कथक वाहिद आर्ट फॉर्म है, डांस आर्ट फॉर्म जिसके इतने इन्फ्लुएंसेस है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज यू हैव द रास लीला, यू हैव द फोक एलिमेंट इन इट, फिर आपके पास वो माइथोलॉजिकल एलिमेंट है, और फिर आपके पास ना एक रिफाइंड राग, ताल, यू नो, फिर गज़ल, फिर ठुमरी, फिर आज़ाद शायरी, फिर पोएट्री, फिर पर्शियन। तो कितना वसी है, कि उसके पैरामीटर्स देखो कितने बढ़ गए। सो कथक बिकेम सच इट वाज द मोस्ट, दैट्स व्हाई आई थिंक कथक आल्सो फिल्मों में बहुत इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब मुझे बताएं भारतनाट्यम कितना नज़र आता आपको कमर्शियल, कथक आपको ज़्यादा नज़र आएगा क्योंकि वो फॉर्म इज़ सो अडेप्टेबल, आप कहीं भी प्लेस कर लें।
अच्छा, कहीं ना कहीं मोल्ड हो जाए। हैरतनाक बात यह है, जैसे आपने मुग़ल कोर्ट्स का जिक्र किया और उसके बाद जब मुग़ल बिखरे तो मुख्तलिफ जो रजवाड़े थे उनमें चले गए। वाजिद अली शाह का नाम जहन में आता है, ऐसे हाँ, जी, जी। बहुत से राजा महाराजा। लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें कथक को बांधने की कोशिश की गई। ज़वाल 1891 में क्या हुआ, क्या था ये? हाँ बैन हुआ था। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के ज़माने की बात है। हाँ जी, ये बैन हुआ था। सो द कॉर्टिजेंस जी, were banned and they were called nautch girls. हाँ। So वो जो हम patriarchal systems, Victorian period था, if you look at Victorian culture you will also see कि जो missionaries और nuns आई हुई थी, तो वो तो बहुत prude थे, वो तो बिल्कुल। बहुत religious थे और वो समझते थे you know इतनी ये power फाशी। फाशी है, मतलब कि जिस तरह से हमारे मार्शल लॉ में या हमारे उस लिहाज से वी gone through the same kind of मुझे लगता कि वही ट्रिकल डाउन करके पाकिस्तान में वो वजूद हमें मिला जो 1891 में, वही ज़हन but ट्रैवल it's किया। the same patriarchal mind ना, but it's about, अगर देखा जाए ये सब कंट्रोल की बात है ना। अब मैं उसको जो, क्योंकि मैंने अब मेरी मास्टर्स की थीसिस ये थी, तो बेसिकली ब्रिटिश ने इसलिए क्यों, नन्स ने इसलिए किया इसको डिसमेंटल करने के लिए, बिकॉज जो कॉर्टिजेंस थी ना वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, एम्पावर्ड थी, एजुकेटेड थी, फिनिशिंग स्कूल्स थी, उर्दू, इकोनॉमिक्स, फारसी। पॉलिटिक्स, फारसी, हर, तो उन्होंने कभी ऐसी औरत ही नहीं देखी। उन्होंने कहा ये तो हम नहीं कबूल कर सकते। नहीं होने की थी किस किस्म की औरत जो इतनी एम्पावर्ड, हमने कभी, हमारी औरतें तो हमारी जूते के नीचे रहती। सो द वेस्ट वाज पीछे, हम बहुत आगे हैं। इसमें अगर वो आपकी इजाज़त से अगर मैं इजाफा करूं, ये वही दौर है जहां पर यहाँ इस खित्ते में ख्वाजा सिराओं का जो स्टेटस है वो भी यहाँ से उसका ज़वाल शुरू होता है, क्योंकि वही जैसे कि ये यही बात थी ना कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी इसी दौर में आता है जिसमें ख्वाजा सिराओं को बाकायदा कि यार ये तो मतलब बच्चे चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि अगेन वही जो विक्टोरियन बिल्कुल एक ब्लैक एंड वाइट किस्म की मोरालिटी और बड़ी सख्त किस्म की मोरालिटी ना यार, और वो आए और ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, और जो चीज़ आपके समझ में नहीं आती फिर वो आप डिसमेंटल करते कर अफसोस की बात खौफ भी लगता कि ये खौफ आता है ना, बुरा लगता है, we fear what we don't understand. the patrons with the nawabs, the kings and the princes, right? So उन्होंने कहा कि ये पूरा सिस्टम को हम डिसमेंटल करते तो we will divide and rule वाली बात है ना, तो उन्होंने नवाब को डिसमेंटल किया, उन्होंने सबसे पहले कॉर्टिजन को डिसमेंटल किया, बैन कर दिया। अब देखो ना, ये जो प्रोस्टिट्यूशन की बात स्टार्ट होती है, एंड आई मे बी बीइंग वेरी ओपन हियर, इज़ बिकॉज जब इकोनॉमिकली उनकी सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो गई तो उनमें से जो सस्टेन्ड थी, जो नामवर थी, जिनके पास पैसे उन्होंने बहुत बनाए, ज्वेलरी थी, जैसे एक आर्टिस्ट बहुत जो सरवाइव कर सकती थी, कैन सर्वाइव, जो नहीं सर्वाइव की, दे वर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। तो वो जाती कहाँ थी? वो सोल्जर्स के बैरिक्स में जाती थी जी, और वहाँ बिकॉज सोल्जर्स के पास पैसे होते थे, नवाब तो देने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज वो अपना फन, वो उसका फन देखने आते थे ना। सो देन दैट होल एक्ट ऑफ prostitution came into because of the British and they encouraged this and the British। अब देखो और डिसमेंटलिंग क्या हुई कि क्योंकि एक ब्रिटिश सोल्जर को ठुमरी की समझ नहीं आएगी, उसको उर्दू की समझ नहीं है, उसको फारसी की समझ नहीं, उसने थोड़ी देखना या समझ, तो फिर वो डिजेनरेट फॉर्म, फिर वो एक फिजिकल बॉडी कंजम्पशन वाली एप्लीकेशन। दिस इज हाउ डांस गॉट डिजेनरेट। निगर चौधरी साहिबा के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि कहाँ से शुरू हुआ, देवमालाई कहानियाँ जो हैं, आपने जो गुफ्तगू के शुरू में कहा, जी जी, देवी देवताओं से शुरू होता है, जी जी, फिर दरबार में आता है, अब ना दरबार है ना देवी देवताओं की कहानियाँ हैं, तो अब कथक क्या करे? तो अब वो जो मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ हैं, जैसे एनवायरनमेंट है, जैसे रेजिस्टेंस है, जी जी, वो इसके अंदर आ रही है। ये एवोल्यूशन कैसा देख रही हैं? आई थिंक दिस, ये तो होना था। यू हैव मार्क्सिज्म कमिंग इनटू, यू हैव सोशलिज्म कमिंग इनटू डांस,
You have so much coming into dance. सोशलिज्म को डांस में कैसे नहीं एक्सप्रेस मतलब कि people, so many people have taken out on the topic of equality and non-equality of power. You know, Foucault का सारा जो power structures है ना, वो डांस में भी तो डिपिक्ट हो बुनियाद तो अभी भी storytelling है ना? Because it's still storytelling. still storytelling. तो कथक की स्टोरी टेल स्टोरीटेलिंग कथा है ना, मतलब थ्रू योर बॉडी उसका जो उसकी जो मेन फाउंडेशन वो कथा बताना, स्टोरी बताना, ठीक है. टेक्निक उसका एक एक्सपर्टीज है ना. तो क्योंकि I myself have, you know, I have my issues have been, I made a piece called Kursi, I did a piece called Aina which was about society. फिर मैंने आधी गवाही की थी about the women being half a witness for my thesis project, my choreography degree, जिसमें मैंने यही कहा ना कि in the Quran it is stated that the woman is only half a witness in matters of finance. और वहाँ पे पूरी कुरानिक रेफरेंसेस सब कुछ है. फिर जो ज़िया साहब के ज़ियाउल हक के ज़माने में जो हदूद ऑर्डिनेंस आया, it was so against. So when you speak, so I made a whole dance narrative out of that. फिर मैंने एक पीस की थी पर्दा, which is my journey. कि what is the idea of पर्दा? You know, is it the eyes? Is it the body? What is it? तो वो फिर वो स्टोरी जो सो वही मैं कह रही ना कि इश्यूज सो मेनी पीपल आर नाउ अब एनवायरनमेंट के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर, एनिमल प्रोटेक्शन के ऊपर इतनी कथक में स्टोरीज आ रही एंड इट्स अमेजिंग बिकॉज जो मॉडर्न डे इश्यूज है ना, जिस चीज़ से एक आर्टिस्ट अफेक्ट होगा ना वो उसका इजहार करेगा. बिकॉज आर्टिस्ट जो है ना इज़ अ मैसेंजर, वो सिर्फ एंटरटेनर नहीं होता. मैसेंजर तो हैं, परफॉर्मेंसेस भी हैं. क्या मैसेज समझने और सुनने वाले भी मौजूद हैं अभी तक? यू नो, आई बिलीव डांस जो है एक विजुअल आर्ट है. आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए. नहीं, आई रियली बिलीव दैट. इट्स लाइक मैं एक पेंटिंग देखने जाऊंगी, जो इंटरप्रिटेशन मैंने देनी है उसको देख के वो मुझे मिल जाएगी. अब वो फ्रेंच अगर पेंटर ने बनाई है उसको कुछ फर्क नहीं मतलब पड़ता. ओवरआर्चिंग थीम पता ही चल जाता है ना. इफ आई एम डूइंग समथिंग जैसे मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर कर रही हूँ या आई एम डूइंग समथिंग ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होती. वो ओवरआर्चिंग थीम पता चल जाता है कि वो क्या है, बिकॉज इट्स सच ए विजुअल थिंग. मतलब कोई युगांडा में बैठा हुआ है, कोई साउथ अमेरिका में बैठा हुआ है, कहानी तो एक ही है ना, उसको समझ आ रही है. 32 मुल्कों में गई. मैं साउथ अफ्रीका गई, आई वेंट टू सिंगापुर, आई बीन टू रशिया, आई बीन एवरीवेयर माशाल्लाह. आई डिडंट हैव टू एक्सप्लेन कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं ये कर रही. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा कि मुझे डिटो बताना होगा. इसका मतलब ये है, उसका जूस बता देती हूँ कि देखो दिस इज दिस, आई एम डूइंग दिस, इज कॉल्ड दिस एंड आई एम, यू नो, दिस इज माय ओवरआर्चिंग थीम एंड दैट्स इट. बाकी वो देख के वो खुद फैसला करते हैं. हाँ, मतलब रिसेंटली अभी लाहौर कथक फेस्टिवल में मैंने एक देयर इज अ थिंग कॉल्ड अष्टा नायिका व्हिच इज द 8 moods ऑफ द वुमेन. इट्स इन नाट्य शास्त्र. तो उसमें से खंडिता नायिका जो है ना इज द ब्रोकन वुमन. Khand means to break. Naika is the heroine. So the heroine is broken. She's been betrayed by her beloved. So she waits up the whole night. अब मैंने सिर्फ आके स्टेज पे कहा खंडिता नायिका करने वाली हूँ, अष्टा नायिका है, 8 moods of a woman. This is the woman who is broken and betrayed. That's all I said. बाकी जो मैंने दिखाया, I did not. Everyone was like absorbed because it's how you depict it. I'm a storyteller. तो मेरी स्टोरी मतलब जैसे हम एक फिल्म देखते, अच्छी फिल्म, हाँ, उसको बताने की अच्छी स्टोरी, अगर मैं अच्छी स्टोरी डिपिक्ट करूंगी तो जाहिर है वो समझ आएगी. अगर मेरी क्लैरिटी और मेरी स्टोरी टेलिंग नहीं होगी तो वो देख के चले जाएंगे बस. ठीक है. अच्छा निगत जी, अब जब मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था और बहुत अच्छी बनी है, एक लफ्ज़ है जो थोड़ा सा मेरे जहन में अटक गया है. हाँ, और कुछ हद तक अभी जो आप बातें कर रही हैं अब मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा है कि उसका मतलब क्या है. कि मतलब देखिए सोशियो पॉलिटिकल का तो हमने सुना हुआ है, जियो पॉलिटिक्स तो बायोपॉलिटिक्स हमने पहले नहीं सुनी थी ये टर्म. मैं पहली दफा सुनी है. इसके बाद मैंने गूगल किया लेकिन मतलब मुझे बायोपॉलिटिक्स, लेट्स लुक एट इट विद इन द डांस फ्रेमवर्क. सही. So the endangered body, how the body becomes a battleground. So it's all around
the issues of the body, the patriarchal system. उर्दू में थोड़ा सा सॉरी, अगर- तो हम ये बात चलो मैं ये कहती हूँ कि हम जिस्म की बात करते हैं, ठीक है? तो बायोपॉलिटिक्स जो मेरे डांस के नैरेटिव, अगर रक्स के हवाले से मैं देखूँ तो पेट्रियार्कल सिस्टम्स ने बॉडी को कंट्रोल किया। तो बॉडी की जो लैंग्वेज, बॉडी की जो फ्रीडम, बॉडी की कि आप ये नहीं कर सकते या आप ये कर सकते, वो तो स्टेट कंट्रोल जो बॉडी पे आती है, दैट फॉर मी इज़ बायोपॉलिटिक्स। मतलब बहुत सारे एरियाज और भी आते हैं, मगर इन मेरे कॉन्टेक्स्ट में रक्स के हवाले से तो बायोपॉलिटिक्स इस फ्रेमवर्क में आता है, क्योंकि मेरे हमेशा, जैसे मैंने कहा कि मैंने आधी गवाही की, मैंने पर्दा किया, मैंने अभी रिसेंटली फैज़ फेस्टिवल में मैंने सारे जो है ना ऑल अबाउट औरतों के ऊपर किया कि इस तरह वो किस तरह से, फिर वो एम्पावर्ड किस तरह से होती। मैंने नेगेटिव पे नहीं छोड़ा, तो मैंने बाहर आए पे ख़त्म की कि हाउ हर बॉडी इज़ फ्री फॉर हर, अपने जिस्म से उसका जो रिश्ता है। तो मतलब कि बायोपॉलिटिक्स वो है कि अगर स्टेट कंट्रोल करे, या आपका हस्बैंड आपका स्टेट है या आपका फैमिली आपका स्टेट है, वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करे कि आप कर सकती है या नहीं, बिकॉज आप एक इंडिविजुअल यूनिक ह्यूमन बीइंग है। तो मेरे लिए वो है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है, सही है। विद इन द फेमिनिस्ट और विमेंस एम्पावरमेंट के हवाले से। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो मेरे लिए नई थी, हीलिंग थ्रू डांस या डांस थेरेपी। माय फेवरेट सब्जेक्ट, ओहो, ये क्या है? सबसे ज़्यादा। हाँ। देखिए, सबसे पहले ये बड़ी मैं इतना ज़्यादा इस पे बोलती नहीं, मैं बोलूँगी आज। तो 1997 में एक कलंदर हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। ठीक है। सैयद सफ्तर अली कलंदर बाबा मेरे मुर्शद हैं। तो धमाल से मुझे इनिशिएट करते हैं, धमाल से। उसके बाद से मेरा रक्स की जो कैफियत है वो चेंज हो जाती है। वो राब्ता, वो यकसू करना, वो कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग थ्रू फोकस एंड डायरेक्टिंग योर एनर्जी, मतलब कि अपनी तवनाई को किस तरह से डायरेक्ट करके, किसी को दुआ करके, या अगर मैं धमाल डालती थी तो वो उनको यकसू करते कि निगत जी के ना पैरों को देखना बस, और एक अंदर जिक्र करना है। मतलब द आइडिया बेसिकली तवनाई के ऊपर, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। yes. देखो हाथ रख So के, little bit like Reiki फिर। मैं कहने हाँ, अभी ये हाँ। कहने वाले कि हाथ रख के जैसे आप रेकी करते हैं, मगर हमारे कलंदरों के और हमारी सूफी सिलसिले में ये तो कब से चला। बेशक। जैसे पानी, अगर आप मैं यूँ करूँ, मैं हाथ रख दूँ और मैं फोकस करूँ और वो बोतल में फूंक के कहते जाओ पी लो, तो हम 70% पानी है। तो ये इतना सा पानी उस 70% के मोलेक्युलर लेवल को चेंज कर देगा, इतना पावरफुल है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग है ना, सो आई बिलीव कि रक्स के थ्रू, एक तो अगर मैं साइंटिफिकली देखूं तो राइट लेफ्ट ब्रेन फंक्शन को बैलेंस करता है, ठीक, अब कॉग्निटिव आपके बेहतर वो सारा करता है, आपको फिजिकली एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं इन योर, सो इट गिव्स अ सेंस ऑफ रिलीज, अ सेंस ऑफ फ्रीडम, अ सेंस ऑफ हीलिंग स्टार्ट्स। तो ये आप करवाती हैं हाँ जी, जो आप अपने स्टूडियो में? मैं कुछ सेशंस करती हूँ कुछ लोगों के साथ, कुछ मैं लोगों को इंडिविजुअली भी गाइड करती हूँ, धमाल से इनिशिएट करती हूँ, उनको कोई कनेक्ट कर देती हूँ। एंड आई स्टार्टेड अ कोर्स व्हिच इज़ मूवमेंट मेडिटेशन, जो मैं अमेरिका में मैंने अभी पिछले साल लॉन्च किया, क्योंकि इस तरफ मैं थोड़ा सा आ रही हूँ बाहर, बिकॉज़ मुझे लगता है कि माशरे में बहुत सारी लड़कियाँ जो मेरे पास आती हैं उनको ज़रूरत है, और एक स्टाइलाइज्ड फॉर्म नहीं चाहिए, एक सेंस ऑफ फ्रीडम इन द बॉडी, एक सेंस ऑफ आज़ादी अपने जिस्म के साथ, और एक सेफ, मतलब एक स्ट्रेट जैकेट में नहीं डालना। हाँ, मैं कथक के, हालांकि कथक की शायद बहुत हीलिंग है, क्योंकि वो भी आपको यकसू में लेके जाता है, आपको फोकस करना पड़ता है। जो जब वो क्यों सीखे जब चली जाती तो कहते हो सारे दुख दर्द खत्म हो गए, क्योंकि वो सब छोड़ के आए क्लास के अंदर। वही कॉन्सेप्ट
डांस हीलिंग मतलब ये तो एक फिजिकल कैथारसिस भी है ना एक तरह से। एब्सोल्युटली और अभी अपनी एनर्जी, अपनी इमोशंस, बिकॉज यू नो आप जब लॉजिकल ब्रेन में जाते हैं ना तो वो आपको थकाता है. लॉजिक कैन टायर यू आउट, बट जब आप कल्ब में आते हैं, दिल में आते हैं ना, तो फिर आपकी हीलिंग शुरू. निगर चौधरी साहिबा के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आपके पास जो बच्चे आते हैं, जी, जी, आपके स्टूडियो में आते हैं, जी, जी. या अगर फ़र्ज़ करें हबीब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रही हैं जी, तो जी. वहाँ बच्चे आ रहे हैं, जिस तरह का पाकिस्तान में माहौल है और जिस तरह डांस के साथ एक चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, उसको देखते हुए वो कौन से बच्चे होते हैं, किस तरह के बच्चे होते हैं जो आपके पास आते हैं, क्या क्या रुकावटें अबूर करके आते हैं, और जब आपके पास से जाते हैं तो उनमें क्या तब्दीली आती है? अब मैं इसको सब डिवाइड करूँगी, क्योंकि हबीब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रैक्टिस हूँ, तो मेरा कोर्स सिखाना जो है ना परफॉर्मिंग नैरेटिव्स है, विच इज़ डिवाइस थिएटर, और कुछ मूवमेंट उसमें लबान, रुडोल्फ लबान की नोटेशन और कुछ इस तरह. तो अभी मैंने 2 इलेक्टिव्स डिज़ाइन किए. अब मेरे इलेक्टिव्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं. मेरा पहला इलेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू डांस आर्ट फॉर्म्स एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस इन पाकिस्तान. अब उसके अंदर 4 फॉर्म्स की लेक्चर्स, हिप हॉप, सूफी, फोक डांसेस ऑफ पाकिस्तान एंड कथक. मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने कल्चर से कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, हिप हॉप एक हुक है बुलाने के लिए। हाँ। और नहीं फेयर है इट्स अ वॉइस हुक. मैंने जैसे म्यूजिक की क्लास में वो कहते हैं गिटार की क्लास. सर हिप हॉप का भी मगर एक कल्चरल मुझे- कॉन्टेक्स्ट है। मुझे हिप हॉप बहुत पसंद है. मेरे तो सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, तो मैंने सारे रिसर्च करके ये इलेक्टिव क्रिएट किया हबीब यूनिवर्सिटी के लिए. उसके अंदर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी है, और फिर इंस्ट्रक्टर्स आए. हिप हॉप इंस्ट्रक्टर आता है, फिर एक मैं कथक करती हूँ, फिर फोक इंस्ट्रक्टर आता है, फिर एक सूफी इंस्ट्रक्टर आता है. अच्छा. और लेक्चर्स मैं सारे देती हूँ, फिर उनको रिफ्लेक्शन एसेज. और मैं बताती हूँ कि मेरा जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ सिर्फ 10 स्टूडेंट्स थे. आज मेरा कैप 27 पे गया. ओके. सो आप देखिए उसमें लड़के लड़कियों का क्या रेशियो? दोनों, अच्छा. दे लव इट. अगर मैं आपको ना वो स्टूडेंट इवैल्यूएशन शीट होती है ना, सारे स्टूडेंट्स, जब मैं यूनिवर्सिटी में घूम भी रही होती, मैम प्रोफेसर व्हेन इज़ योर नेक्स्ट, आपका वो इंट्रोडक्शन टू डांस आर्ट फॉर्म्स के इलेक्टिव कब हो रहा, हमने ज्वाइन करना. धूम मचा हुआ, बिकॉज एक तो जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के बात की, मेरा लास्ट लेसन मैंने वो आपने क्या सीखा मेरे कोर्स से, आप बताएं. तो वो कह रहे थे मैम हमने देखा कि हम अपने कल्चर से जुड़े नहीं थे. हमें नहीं पता फोक डांसेस बलूचिस्तान क्या है, सिंध क्या है, हम कराची तक महदूद थे. ठीक है, या नॉर्दर्न एरियाज में खटक क्या है, या पंजाब में भंगड़ा का तो पता चले उसको सब अगर बाकी चीज़ सूफीज़म से इसका जो वर्लिंग क्या है. मेरे लेक्चर में मैंने रूमी और शहबाज कलंदर पाक सलात इस्लाम के दोनों के कंपैरेटिव स्टडी डाली अपने लेक्चर में. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूमीज वर्लिंग एंड शहबाज कलंदर्स धमाल. सो व्हाट इज़ यू नो वन इज़ केओटिक एंड raw and the other is organized movement. तो so they वो कहते हैं हमने कभी फिर उनको जब हम कराते हैं ना वो एक्सपीरियंस देखो. एक होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जब उनको एक्सपीरियंस करते वो इतना कोई कमाल की उनकी रिस्पॉन्सेज होते हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ. और वो आते हैं से हम इतने खुश हैं कि हमने ये कोर्स किया, क्योंकि हमारे अंदर एक तो हम पाकिस्तानी होने का एहसास होता है, अपने कल्चर से हम जुड़े हैं जो हमें पता ही नहीं. हम घर जाके अपने फैमिलीज़ को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बता, आपको पता कि बलूचिस्तान का ये डांस, उन्होंने कभी लेवा ही नहीं देखा, उन्होंने कभी सिंधी झूमर नहीं देखा, और फिर उन इंस्ट्रक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. मतलब वो तो उनका एक वर्ल्ड व्यू जो है उसमें ज़ाहिर ट्रांसफॉर्मेशन इतना खुल जाता, वो इतने अपने मुल्क से. और इसको कहते हैं नेशन बिल्डिंग. दिस इज नेशन एब्सोल्युटली. ऑनेस्टली और मैं आपको बताऊं जो हिप हॉप का मैं करवाती हूँ ना, तो हिप हॉप एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन पाकिस्तान, हाउ इट इज एक्चुअली अ रेवोल्यूशनरी डांस, बिकॉज वो मार्जिनलाइज्ड अफ्रीकन्स थे जो एनस्लेव थे 1970s में ब्रॉन्क्स में जो स्लेव ट्रेड यहाँ पे और जो भी हुआ सारा, तो
हिप हॉप इज़ अ कल्चर, इट्स लाइक एमसीइंग, ग्राफिटी, वो सारे कल्चर तो यहाँ पे भी है। तो आप ग्राफिटी देखिए, आप तो जो रैप यहाँ पे लिखा जा रहा है ना उर्दू में या पंजाबी में, वो हिप हॉप के साथ हो रहा। तो इतना वो यंग किड्स भाई, वो तो इतना तो रिलेटेबल होता है उनके लिए। फिर उनको एक वो बनाना पड़ता है, एक डांस जर्नल जिसमें वो सारे अपनी रिफ्लेक्शंस लिखनी पड़ती हैं। फिर उनको मैं एक थीसिस प्रोजेक्ट देती हूँ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद, मतलब लोगों की वॉइसेस क्या है, पॉलिटिकल वॉइस क्या है, गवर्नमेंट की वॉइस क्या है, एक सब्जी वाला क्या कहता है रक्स के बारे में। तो वो थीसिस प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता कि मुझे 4 साल हो गए, अब 4 साल होने वाला हबीब में। अगर फर्स्ट ईयर में 10 थे, अब उसके बाद फिर 20 हो गए, फिर 24 हो गए, फिर अब 27। तो आप सोचे कि कम से कम 100-200 बच्चे तो इतने लेके गए हैं ये नॉलेज, राइट। जितने मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि उनका जो मैंने देखा है कि वो हमेशा मुझे कहते हैं कि आपका जो कथक जो आप सिखाते हैं वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि मैं सिलेबस सिखाती हूँ। आई एम दी ओनली वन जो इस वक्त पाकिस्तान में, लंदन के साथ मैंने एक साइन अप किया। आई हैव अ फाउंडेशन, निगर चौधरी फाउंडेशन, उसके साथ मैंने साइन अप किया विद द PRSSV संगीत ऑर्गेनाइजेशन इन लंदन, कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते, वो सिलेबस मुझे भेजते कथक का, और मैं वो कथक सिलेबस, सो वो गोल ओरिएंटेड होता, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी होता। वो कहते इट्स नॉट जस्ट अबाउट डांसिंग, देयर इज अ होल, उसके पीछे पूरा एक फिलॉसफी है। तो वो मेरे स्टूडेंट्स हमेशा, देखो कुछ लोग वैसे अपनी रूह के लिए आके सीख के चले जाते हैं, कुछ मदर्स भी होती हैं, कुछ वर्किंग वुमेन होती हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स, आई हैव इन द लास्ट 5 years कम से कम 40 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिए। अब एक मेरी जापानीज स्टूडेंट ऑनलाइन है जो ग्रेड 5 में आ गई। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव, उनके लिए एक किस्म का इल्म, और मैं होलिस्टिकली सिखा। मैं ये नहीं कहती सिर्फ मुसलमानों का है, मैं कहती नहीं बेटा ये सारा आपको सीखना पड़ेगा। इट्स लाइक सेइंग मोहनजोदारो को काट दो, हाँ, पाकिस्तान से निकाल दो, ऐसे नहीं कर सकते। पिरामिड्स की बात ना करो, नहीं कर सकते ना, आपको वो टेम्पल से लेके मुगल तक लेके जाना। तो वो पूरा उनको जब मैं वो देती हूँ ना इल्म, तो वो एजुकेटेड बच्चे हैं, वो शौक से आते हैं, वो सीखते हैं, वो कहते हैं कि हमें डायरेक्शन और फोकस, फिर स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस भी होते हैं। तो उनकी लाइफ में एक किस्म की ना, वो ज़्यादातर मुझे यही कहते हैं, हम कल्चरली अवेयर हो जाते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो वी फील प्राउड कि हमें अपना डांस, अपने रूट्स के तो पता लगा ना, अपने कल्चरल हेरिटेज और डांस ट्रेडिशन से जुड़े हैं। निगर चौधरी साहिबा के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी आफ्टर दिस ब्रेक। आपने बात की हबीब यूनिवर्सिटी की, जाहिर है कि वो एक अलग शोबा है। जी जी। जो आपने जिक्र किया अपनी प्राइवेट क्लासेस का या मूवमेंट मेडिटेशन का, शायद जी, अपने जी, मैं डांस अल्फाज थेरेपी इस्तेमाल, डांस थेरेपी, सॉरी। जी, जी, अगर क्वेश्चन हो तो क्या किया जाए, लाइक हाउ डू दे कांटेक्ट यू? वेल अ लॉट ऑफ, अब इंस्टाग्राम इतना एक्टिव है, हाँ, तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मुझे वो करते, कांटेक्ट करते। निगर चौधरी ऑफिशियल मेरा वो है, या वेबसाइट के थ्रू मुझे करती, या कहीं ना कहीं से मेरा नंबर वो ले लेते हैं, वो मुझे कॉल कर लेते हैं। एंड आई फील कि मुझे अब एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, मतलब कि मैं एक जगह भी देख रही हूँ, मैं एक वेलनेस सेंटर की तरफ जाना चाह रही हूँ, बिकॉज आई थिंक डांस मेरे लिए वेलनेस है। तो मैं एक नहीं उस कैटेगरी में तो आता ही आता है। हाँ, जी तो बेशक। वेलनेस सेंटर की तरफ जा रही हूँ, और मैं एक बड़ी जगह देख रही हूँ जहाँ मैं अभी छोटे बच्चों को भी सिखाना चाह रही हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरा वेबसाइट पे अगर आपने देखा, कितने छोटे बच्चे? मतलब 5 साल के, अच्छा। 6 साल के, छोटे छोटे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे आपने देखा होगा क्रिएटिव डांस प्ले, मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया फॉर लिटिल किड्स हु जस्ट वर्क विद मूवमेंट एज क्रिएटिविटी। मतलब तख्लीक करें, कभी कपड़े के साथ, कोई बॉल के साथ, कोई रिंग के साथ, वो एक्सप्लोर करें, बिकॉज बच्चे टच करते हैं ना चीज़ों को, देखो टैक्टाइल लर्नर्स, वो टैक्टाइल है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना उनको चीज़ें दूंगी जिसमें वो एक्सप्लोर करेंगे, वो अपनी वहाँ अपनी क्यूरियोसिटी वहाँ निकालेंगे। वो घर जाके शायद उनकी ग्लासेस नहीं तोड़ेंगे, मगर चैनल करना चाह रही, तो मैं अब छोटे बच्चों की तरफ मेरा अच्छा, मैं इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो, मैं एक सवाल जो है वो मैंने बचा के रखा हुआ था बताएं। बताइए। कि अब तक हम जो हैं
कथक पे बात करते रहे, आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस, आपकी ऑब्जर्वेशन, उस पे बात करते रहे। एक गोशा आपका है एक्टिंग का, ओहो और मैं इनका जो प्रोफाइल पढ़ रहा था उसमें था कि निगार अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, जी जी आसिफा बानो की कहानी पे कान फिल्म फेस्टिवल में विनर बेस्ट सोशल जस्टिस शॉर्ट फिल्म इनकी जो गई, और उसमें डायरेक्शन एंड कोरियोग्राफी में आपकी वहाँ कान में वाह वाह हुई। ये जो एक्टर निखत चौधरी हैं, इनके बारे में कुछ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेघ मल्हार वाज वन ऑफ माय फर्स्ट प्लेज जो मैंने किया था 1996 में, मुझे ये अवार्ड मिला जिसका जिक्र आप करें। और एक्टिंग एक डांसर जो होती है ना, वो एक एक्टर होती है, क्योंकि वो हर वक्त स्टोरी बता रही, वो हर वक्त इमोशंस में होती, वो हर वक्त कैरेक्टर में होती है, वो कोई ना कोई एक, तो आई फील मतलब डांसर जो है ना बड़े पावरफुल एक्टर्स होते हैं। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारा ये फेस बोलता है, एक्टर को लफ्ज़ भी चाहिए होता है। तो क्योंकि मैंने लंदन में, बाय द वे लंदन में पली बड़ी ना, तो मैं एक थिएटर कंपनी में सीखने भी जाती थी एक्टिंग, वो शौक़ भी था मुझे, मगर मैंने इसलिए भी किया कि मुझे लगता है एज अ डांसर एक्टिंग भी हेल्प करता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वो सारी, तो इसलिए मैं शौक़ भी था। और वैसे भी मुझे लगता कि जितना मैं क्यूरियस थी एक्टिंग के बारे में। तो जब मैं पाकिस्तान, वैसे भी मेरी उर्दू इतनी ख़ास अच्छी नहीं है, शुरू में जब आई तो मुझे तो रोमन में लिख के देते थे, बख्तियार साहब डायरेक्टर थे, मैंने कहा सर मैं उर्दू नहीं पढ़ सकती। पीटीवी ये था NTM, अच्छा NTM का ज़माना। तो बख्तियार साहब ने फिर मुझे रोमन में लिख के फिर दिया कि वो रोमन पढ़ लेती थी। अब नाउ आई कैन रीड, बट मैंने अभी बरज़क किया रिसेंटली, मैंने हमायूं सईद के साथ ये जो ग्लासगो अलीज़े प्रोडक्शंस जो करते थे स्कॉटलैंड में, जो प्रोडक्शंस हर साल, उज़मा गिलानी के साथ, हमायूं के साथ, ये जो बहुत प्लेज मैंने किए। एंड आई थिंक मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी कि मेरी एक्ट्रेस क्या कर सकती है। और अब मैं इतना, मेरा तवज्जो उस तरफ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता वो एक शौक़ था मेरा डांस, मेरी प्राइमरी डांस मेरा इश्क है। और एक जिंदगी में बंदा कितनी चीजें कर सकता है ना, कसम जब से। लोग कहते हैं ना कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मुझे लगता है एक ही आर्ट नहीं मास्टर हो रहा, कसम से। कम से कम पता नहीं कितने जन्म चाहिए, इसी फन को खत्म नहीं हो रहा। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर कोई वैम्पायर बंदा को काट ले तो एक तरह से फायदा हो जाएगा, कम से कम इतनी जिंदगी तो होगी ना कि बंदा मतलब कोई जो चीजें बंदा सीखना चाहे वो सीख सके। कोई है वैम्पायर? नहीं, अगर मुझे मिले तो मैं बता दूंगा। ये क्या बताना जरूर। ये क्या वैम्पायर मरते नहीं है ना, वो जिंदा रहते हैं। देखो ना, मैं बार बार सीख सकती या तो मतलब कोई स्टेक वो एक डाल दे या सूरज में। वैम्पायर अगर मेरा खून चूस ले तो मैं, नहीं, आपका पूरा खून नहीं चूसेगा ना। अगर आप इतने काबिल हैं कि वैम्पायर कहे कि यार बड़ा सही बंदा है, इसको भी मैंने वैम्पायर बनाना है ताकि ये भी मेरे साथ सदियों गुजारे, मैं वो वाले बात। फिर तो वो नहीं चूसेगा मेरा खून, मुझ में ये चीज़ें हैं ही नहीं। आपकी बात भी वैसे कोई नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात कर रहा था यहाँ पे। एक चीज़ जो है वो बड़ी मुझे अजीब सी लगती है कि जितने भी कथक परफॉर्मर हैं, शायर सैकड़ों हैं पाकिस्तान में, या नहीं मैं पाकिस्तान की बात, लेकिन ये कि अचानक जहन में ख्याल आता है कि यार अब ये कोई फैसला की जो गज़ल है उस पे या नज़्म पे परफॉर्म करेगा, बाकी जो शोरा हैं उनको क्यों नहीं लिफ्ट कराते ये लोग। मैंने इफ्तिखार आरिफ भी किया है, मैंने मीरा जी भी किया, मैंने बहुत सारे, आपने सारे शोज़ ही नहीं देखे, और सारे शोज़ रिकॉर्ड भी नहीं होते। नहीं देखे। सो ज़रूरी नहीं, आई थिंक देखे ना, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब करने जा रही, जो यूथ है ना आजकल के, वो बॉलीवुड से इतने इंस्पायर्ड। ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी क्लासिकल डांस तो होता नहीं, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक है, देयर इज़ नो सच थिंग एज सेमी क्लासिकल डांस। तो वो सारे बॉलीवुड की लिरिक्स, क्योंकि वो ईजी है, वो समझ लेते हैं। किसी शायर को पढ़ने के लिए, इफ्तिखार आरिफ को समझने के लिए बहुत आपको बैठना पड़ता। मुझे, मेरी उर्दू इतनी वो नहीं, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। तो मैं किसी जो उर्दू ख़ास समझते उनके पास जाके मैंने पूरा स्टडी किया, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका क्या है, इसका क्या।
तो आई थिंक उसमें जहाँ मेहनत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल मेरी तरह शीमा जी भी ऐसी है, वो भी बहुत एक थॉटफुल और अवेयर और एक वेरी शी इज़ अ मैसेंजर हरसेल्फ ना, खुद वो अपने फ़न के थ्रू वो हमेशा सोशल इश्यूज़ पे काम करती, वो शायरों को, अच्छे अच्छे शायरों को, हमने हबीब जालिब भी किया, मैं नहीं मानता, मतलब हमने तो, आई एम जस्ट गोइंग बैक ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ कि हमने कहाँ कहाँ वो चीज़ें की हैं, मगर समझ के की है। मुझे लगता है आजकल के जो यंग जो कथक में आए भी है, दे नॉट गोइंग दैट वे, दे फील इट्स ओल्ड स्कूल, कि शायर को उठाने इज ओल्ड स्कूल। हालांकि शायर तो हमेशा ज़िंदा होता है, उसका आज मतलब अगर हम किसी को भी ले लें, अगर हम हबीब जालिब को भी ले लें, या हम इफ्तिखार आरिफ को ले, या फैज़ साहब या फराज साहब, जो भी जिन के भी, दे स्टिल रेलेवेंट टुडे, उनका पैगाम, उनकी बात। नहीं, अगर शायरी है तो कल्चरल डिस्कनेक्ट पैदा हो गई है। गालिब रेलेवेंट रहेगा, मीर साहब रेलेवेंट रहेंगे, तो अगर शायरी है तो रेलेवेंट रहेगा। तो मुझे लगता कि यंग स्टूडेंट्स मे बी नीड टू, उनको कोई मेंटोर या गाइड, देखो ना अभी मेरे कोर्स में आर्ट ऑफ कथक में मैंने उनको दिया बोल के ला बाज़ात, इस पे मुझे स्टोरी टेलिंग नैरेटिव बना के लाओ। आई वांटेड टू सी क्या करते हैं, आई डिडंट वांट कि वो कोई बॉलीवुड सॉन्ग या कोई वो उठाए, मैंने कहा कभी कभी देना पड़ता, कभी कभी पुश भी करना पड़ता पुश भी और ईज इन करना पड़ता। और अगर उस्ताद नहीं पुश करेंगे तो कौन करे? फैज़ साहब सबसे मशहूर है, सब जानते फैज़ साहब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हाँ, चले इस हवाले से इस हवाले। कितनी बातें करें, बहुत सारी बातें जो हैं वो रह भी गई हैं, कुछ कवर हो गई हैं, बहुत सारी नहीं भी हुई हैं। दोबारा बुला ले मुझे, हाँ ये भी है, ये भी हो सकता ये भी हो। मुझे दोबारा बुला, ऐसे कर लेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं, हमें भी नहीं। तो बहरहाल थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। कभी नहीं पता हमें भी नहीं पता ना चला, ऐसे क्या पता सिवाय नहीं। प्रोड्यूसर के किसी को पता नहीं चला। हम 5 मिनट ओवर टाइम है। But thank you so much Thank for you calling me. for being with us. मुझे Thank you. बहुत मज़ा आया, मुझे इट्स एन ऑनर। it's an honor for me as well. तो Thank you for ये है निगहत चौधरी साहिबा से आपने गुफ्तगू सुनी, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।